કંઈક નવું કરવામાં માને છે। આજે વલસાડ જિલ્લાની અંદર 10મા ધોરણની પરીક્ષા આજે જ પૂરી થવાની છે, એટલે વાલીઓ ચિંતામાં આવવાના કે હવે શું, સાયન્સ, કોમર્સ, આર્ટ્સ, પછી શું ભવિષ્યમાં આફ્ટર 12th। તો એના માટેનો વિકલ્પ શોધી કાઢવા માટે અમારી સંસ્થાના ડાયરેક્ટર શ્રી ડૉક્ટર શૈલેષ લોહાર સાહેબે એક નવી શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ। સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સની અંદર તમામ પ્રકારના વિકલ્પો, વાલીઓની જે કંઈ ઈચ્છા છે બાળકના ભવિષ્યની, એ તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સમાં સ્કૂલના સમય દરમિયાન જ સ્કૂલના કેમ્પસમાં જ મળશે અને સ્કૂલની જે ફી છે એ જ ફીમાં મળશે। આની વધારે વિગત જાણવા માટે આપે વાલીઓએ સલવાવ સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ડાયરેક્ટર શ્રી ડૉક્ટર શૈલેષ લોહારનો સંપર્ક કરવો અને દરેક વાલીના મૂંઝવતા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન ડૉક્ટર શૈલેષ લોહાર પાસે છે। એ 100% આ સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી હોય કે અન્ય સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી હોય, તમામ વાલીઓને એ સલાહ, સૂચન અને વિગતો આપવામાં આવશે। થેન્ક યુ। આજની સ્થિતિ એ છે કે વલસાડ જિલ્લો હોય કે કોઈ પણ જિલ્લો હોય, ડૉક્ટર લોકોનું વાલીઓનું ધ્યાન એક જ છે કે મારો બાળક કોટા જાય તો જ JEE નીટને પરફેક્ટ કરીને મેડિકલ અથવા IITમાં એડમિશન લઈ શકે। એ જે માનસિકતા એક થઈ ગઈ છે આજથી વર્ષો પહેલાં આપણું વિદ્યાનગર, એટલે વાલીનું ધ્યાન એક જ હતું કે વિદ્યાનગરમાં બાળક જાય તો જ ભણી શકે। એ માનસિકતાને તોડવા માટે અને બાળકને પોતાના જ ઘરે કોટા લેવલનું એજ્યુકેશન મળી જાય, JEE અને નીટમાં એ સારા માર્કે પાસ થાય અને એની જે ઈચ્છાઓ છે એ ઈચ્છાઓને પરિપૂર્ણ કરી શકે, એનો આ વિકલ્પ સલવાવ શોધી લાવી છે। એટલે બાળકને જે અત્યારે મૂવ થવું છે, બાળક ત્યાં ટેન્શનમાં છે, વાલીથી જુદું છે, ફીનો ખર્ચો અનેક ગણો હોસ્ટેલ સાથે વધી જાય છે, છતાં માનસિક ટેન્શન છે, એ બધું જ દૂર થાય એના માટેનો આ એક વિકલ્પ છે અને એની શુભ શરૂઆત અમે આ જ વર્ષથી કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આ સંસ્થા એડમિશન પ્રક્રિયા હવે ચાલુ થઈ છે, હમણાં જ ચાલુ થઈ છે। લગભગ 45 ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન લઈ ચૂક્યા છે। 200 સીટ જ અમારી પાસે છે અને 200 સીટ જ ભરવાની છે। અને જે સ્ટાફની વાત રહી તો સ્ટાફ, એક્સપર્ટ સ્ટાફ, કેમેસ્ટ્રી, બાયો, ફિઝિક્સ, મેથ્સ અને ભાષા, એનો એક્સપર્ટ સ્ટાફ ઓલ ઇન્ડિયામાંથી, નહીં કે ખાલી કોટામાંથી, કોટા બેસ્ટ છે, કોટાની સિસ્ટમ છે, એ સિસ્ટમને અપનાવીને ઓલ ઇન્ડિયામાંથી અત્યારે લગભગ 100 ઉપરાંત શિક્ષકોના ઇન્ટરવ્યૂ પર હમણાં ડૉક્ટર સાહેબ લઈ ચૂક્યા છે અને એમાંથી ચોઈસ કરી અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ જે સ્ટાફ પોતાના વિષયની અંદર પરફેક્ટ હશે એ જ સ્ટાફને અમે નિમણૂક આપવામાં આવશે। આ વર્ષે એક નવા પ્રયત્નો કરવા જઈ રહ્યું છે કે આપણા જે વિદ્યાર્થીઓને આપણા ઘર આંગણે જ JEE અને નીટ અને અધર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની દરેક તૈયારીઓ આપણે અહીંયા જ કરાવી શકીએ છીએ। એ બદલ આપણે એક્સપર્ટ્સ, ફેકલ્ટીઝ અને સુટેબલ ટાઈમ પીરિયડ્સ અને કોટા સિસ્ટમ, સિલેબસ આ બધાનું સમન્વય આપણે અહીંયા કર્યું છે। સો મારું દરેક વાલી મિત્રોને એ જ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે જે પણ કન્ફ્યુઝનમાં છો, તમારે કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો એ પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે 12 તારીખે 4 વાગે અમે લોકો અહીંયા ભવ્ય સેમિનાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો આપ લોકો પધારો, આપને ભવ્ય આમંત્રણ છે અને એમાં તમારા દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તરો અમે લોકો આપશો। તમારા જેટલા પણ કન્ફ્યુઝન છે એની ક્લેરિટી અમે અહીંયા કરી આપશો। સો દરેકને વિનંતી છે કે ભૂલ્યા વગર 12 તારીખે 4 વાગે આપ લોકો આ સેમિનારની અંદર પધારજો। अलग सेंटरों से स्वामीनारायण गुरुकुल कुछ विशेष है, यहाँ शिक्षा और दीक्षा दोनों दी जाती है। जैसे कि देखा जाता है कि जिस तरीके से अभी शैलेश सर ने भी बताया और लगातार देखा जाता है कि विश्व के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं सुसाइड बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे बताया कि माँ बाप कहीं ना कहीं या तो लोन लेते हैं या किसी से कर्जा लेके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिसमें भारत का रेशियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2-2, 2.5 लाख बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इन सभी पढ़ाई के चक्कर में। तो कितना सुधार होगा इन चीज़ों को लेके? और जो स्टूडेंट इस तरीके से सुसाइड कर लेते हैं उनके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहते होंगे, कर्जा उठाया तो वो कर्जा भी भरना पड़ता होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो, बच्चों का मानस अल्प विकसित है, पूर्ण विकसित नहीं है। हम लोग बड़े लोग पूर्ण विकसित होने के बाद भी अगर कोई जीवन में समस्या आ गई और उस समय
हेत देने वाला, प्यार देने वाला, आश्वासन देने वाला व्यक्तित्व नज़दीक में नहीं है तो आपको गंदे विचार आएंगे, आप आपके जीवन को समाप्त करने की कोशिश करोगे और आज हो रहा है। तो आप आपके बच्चों को लोन लेके बड़ी बड़ी बात करके मेरा बच्चा IIT में जाएगा, मेरा बच्चा कोटा पढ़ रहा है, आप 25 परिवारों को बोल देंगे, आप मित्र वर्तुल में बोल देंगे, उससे बच्चों के माइंड में टेंशन आता है कि अब मेरे पेरेंट्स ने लोन लेके कई लोगों को, मेरे रिश्तेदार को बता के मुझे कोटा भेजा है, अगर मेरा रिजल्ट सही नहीं आया तो उस समय उनको आश्वासन देने वाला व्यक्ति तो कोई नहीं है। अगर बच्चा घर से पढ़ता है, थोड़ा भी नाराज है, आज भोजन नहीं किया, आज नाश्ता नहीं किया, थोड़ा सुषम है, तो पेरेंट्स पूछेंगे बेटा आज क्या हो गया, क्यों टेंशन है, वहाँ तो कोई पूछने वाले है ही नहीं। तो बच्चा, इसलिए कई बच्चे हमारे होनहार बच्चे सुसाइड कर देते हैं, हर साल हम पेपरों में पढ़ते हैं। ये ना हो और आर्थिक व्यवस्था का भी भारण पेरेंट्स के ऊपर न पड़े और बच्चा खुशी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से अच्छा पढ़ाई करे, इस व्यवस्था के लिए यहाँ स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत जून 2025 से शुरू हो रही है। 10वीं 12वीं की जैसे बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, अभी रिजल्ट आएंगे कुछ दिनों बाद, तो अधिकतर होता है, पिछली बार भी वापी में जैसे देखा गया अपने वलसाड़ ज़िले में कि कई छात्र छात्राओं ने सुसाइड किया इस चीज़ को लेके। तो ऐसे पेरेंट्स को या फिर उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि क्या एक 10वीं और 12वीं में फेल होना ही क्या ज़िंदगी है? देखो, डिग्री ही जिंदगी नहीं है। हम लोगों ने कई लोगों को देखा है, करोड़पतियों को देखा है जिसको साइन करने नहीं आती है। मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन मेरे कई मित्र यहाँ वापी में बड़े बड़े बिल्डर है जिसको अच्छे से पढ़ना नहीं आता, जिन्होंने स्कूल नहीं देखी है, लेकिन अपना परिश्रम, अपना भाग्य और सिंपलनेस, जीवन की सरलता, सादाईता, हर एक के साथ मिलकर जुल के काम करना, उसी के कारण बहुत अच्छी व्यवस्था उनके घर पे है। एजुकेशन ही इनफ नहीं है। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों की क्षमता नहीं देखते हैं, बस उनका बच्चा डॉक्टर बना, मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना ही है, इनका बच्चा IIT में गया, मेरे बच्चे को IIT बनना ही है। एक क्षमता नहीं होने के कारण, क्षमता नहीं देखने के कारण पेरेंट्स की बहुत बड़ी अपेक्षा, और उस अपेक्षाओं के कारण जब बच्चे को लगता है कि मेरा 3 पेपर बहुत ख़राब गया है, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, तो रिजल्ट आने के पहले कई घटना ऐसी होती है कि जो सुसाइड कर देते हैं। और हमने वो भी देखा है, अगले साल 2-3 केस ऐसे हुए थे कि जिनका रिजल्ट 80% आया, लेकिन उसके पहले वो गायब हो गई थी। तो ऐसा न बने, इसलिए पेरेंट्स को मेरी बहुत नम्रता के साथ हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि बच्चों में जो कैपेसिटी परमात्मा ने दी गई है, वो बच्चा आपका भाग्य लेके आया है, वो अपने जीवन में तरक्की करेगा ही करेगा। आप उनको खाली मार्गदर्शिता बनो, उनको आश्वासन दो और गलत रास्ते पे ना चढ़ जाए उसके लिए नज़र रखो। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर भगवान के ऊपर छोड़ो, वो बच्चा अपने आप तरक्की करेगा, वो अच्छे रास्ते पे चलेगा। वो हमारा मेन महत्व है, वो मार्गदर्शन बच्चों को मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश सर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से JEE और नीट की यहाँ पर जो एक व्यवस्था बनाई गई है, कैसे विचार आया, कितना समय लगा, किस तरीके की योजना बनाई गई और आज इसको धरातल पर लेकर उतारा गया? एक्चुअली जब JEE और नीट की बात करें तो हम हर साल ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि भाई वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट की ऐसी बहुत सारी स्कूल्स हैं कि जिसके फर्स्ट स्टैंडर्ड्स के अंदर नंबर ऑफ़ सेक्शंस हैं, लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि 10वीं के बाद डायरेक्टली वो सेक्शंस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बच्चों का मूवमेंट बहुत हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मुझे लास्ट ईयर आके मिले, जब उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा बच्चा बहुत ही होशियार था, तो वो जैसे उसके फ्रेंड सर्कल ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग तो LN अहमदाबाद जा रहे हैं या फिर हम कोटा जा रहे हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन कि बच्चों ने ये सोचा कि भाई हम वहाँ पे जाएंगे तो वी विल डू बेस्ट, हम बहुत अच्छा कर पाएंगे और हमें वो सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलेगी। अब हमारे बच्चे जैसे ही उस एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो बहुत बार बच्चे उस एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि जब ऐसे बच्चे बैक वापस अपने घर आने के लिए प्लान करते हैं तो ये पीयर प्रेशर, जो समाज का प्रेशर है, जो ऐसा क्रिएट हो चुका है कि नहीं मेरा बेटा तो अभी कोटा गया है या फिर LN गया है, डॉक्टर बन के ही आएगा, और
और जब वो मिड में स्टडी छोड़ के आता है तो उसके लिए उस समाज को फेस करना सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब मुझे ये ऐसे पेरेंट्स मिले और उन्होंने बोला कि सर जो ऐसी व्यवस्था हमारे वलसाड डिस्ट्रिक्ट में होती तो हमको हमारे बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, देन वी रियलाइज दैट कि भी एज अ शिक्षण संस्था जो हम इतनी बड़ी लेके बैठे हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जो हर साल मेरे 4 से 5 हज़ार बच्चे अलग स्टेट में जा रहे हैं या फिर अलग सिटी में जा रहे हैं, उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इतने सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो जो वही व्यवस्था हम हमारे यहाँ पे स्टार्टअप लें तो डेफिनेटली हम इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देन इमीडिएटली वी डिस्कस विद द स्वामी जी, और स्वामी जी हर साल हमेशा से यही रहे कि शिक्षण क्षेत्र में हम कितना सदंतर नया नया प्रयास कर सकें और बच्चों को वो फैसिलिटी दे सकें। तो स्वामी जी के आशीर्वाद से हमको लास्ट 1 साल से इसके पीछे हम पूरी प्लानिंग कर रहे थे, और वो प्लानिंग जब हमारी कंप्लीट हुई देन वी डिसाइड कि इस साल के एकेडमिक ईयर से हम ये स्टार्टअप लेंगे। जैसे स्वामी जी ने बताया अभी कि संस्कार संस्कृति बिल्कुल ज़रूरी है, और जिस तरीके से बच्चे अपने परिवार को छोड़कर या माँ बाप की कोई इकलौती औलाद होती है वो पढ़ने बाहर जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर रहते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। साथ ही जैसे अभी हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे, जैसे 2 इंस्टीट्यूटों की अभी बात हुई, आकाश इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर जो टीचर्स यानी कि शिक्षा दुनिया के अंदर ये चीज़ मानी जाती है कि गुरु सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और जो होता भी ईश्वर से पहले गुरु को मानते, लेकिन वहाँ पर चाहे उनका सिलवासा हो आकाश इंस्टीट्यूट का या फिर चला हो, ऐसे करीब कई मैटर आ चुके हैं जो टीचर ही बच्चियों के साथ छेड़छाड़ जैसे काम करते हैं। फिर एक एलियंस का आया था जो इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, कि वहाँ पे सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और कुछ बच्चियाँ स्टेज पर डांस कर रही हैं। तो अपने यहाँ जो शिक्षा चालू होगी उसमें संस्कार संस्कृति को कितना ध्यान में रखा जाएगा? बेसिकली हमारा ये स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव है। स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव में हमारा जो मैनेजमेंट है वो पूरा स्वामी जी अपने खुद ऑब्जर्व करते हैं। हमने हमेशा से जेडब्ल्यू नीट, तो हमने 1 साल पहले ये हमारे माइंडसेट में आया कि भाई हमारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन हमेशा से फ्रॉम द लास्ट 42 ईयर्स जब से ये इसका इंसेप्शन हुआ तब से हमारे दादा स्वामी जी का सिर्फ एक ही संकल्प था कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ संस्कार मिले। संस्कार का मतलब ही ये होता है कि वो माँ बाप के लिए, उनके माँ बाप के प्रति जो आज माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों के पीछे इतने एफर्ट्स करते हैं, तो उनकी वो कदर कर सकें। ये जो टीनेजर एज होती है जिसमें हम कंसीडर करते हैं कि 10वीं से 12वीं का जो ट्रांजिशंस एज का जो पीरियड होता है उसमें बहुत बार बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। ड्यू टू द सर्टेन रीज़न वो अपना पाथ और अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। तो स्वामी जी का हर एक बार यही कॉन्सेप्ट रहता है कि उन बच्चों पे हम ज़्यादा फोकस करें, उन्हें हम अपने हिसाब से मोटिवेट करें और उन्हें ये रियलाइज़ कराएं कि आज हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी सारी मेहनत की है और हमें इस जगह पे पहुंचाया है। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मतलब मेरा हमेशा से यही कहना है और मैं हमेशा पेरेंट्स को भी यही कहता हूँ कि एक पेरेंट अपनी बेटी से यही एक्सपेक्ट करता है कि आज हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम आपके लिए हर एक फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, लेकिन जो कल मेरे न रहने पे मेरी बेटी मेरे पाँव पे यानी खुद उसके इंडिपेंडेंट बन के आगे बढ़ सके, उसी लिए हम सब ये व्यवस्था कर रहे हैं। तो स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव डेफिनेटली इन सब चीज़ों से परे है। यहाँ पे जब स्वामीनारायण की बात आती है तो शिक्षण के साथ संस्कार एडिशन पहले से ही मिल जाता है। तो जो जेडब्ल्यू नीट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अगत्य का जो मेन पर्पस यही है कि हमारे बच्चे एक्सक्लूसिवली इनसे अलग रहें और इनसे अलग रह के एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप कर सके। आज जो बच्चे कोटा जाते हैं तो वो कोटा यहाँ बन सकता है। कोटा में क्या है, वहाँ पे बच्चा सेपरेट है, एक्सक्लूसिव है, बट यहाँ पे पेरेंट्स को उसको शादी में भी लेके जाना है, उसको बाहर घुमाने भी लेके जाना है, उसको एंजॉय भी करवाना है और उसको पढ़ाना भी है। तो ये जो परिस्थिति होती है जिसकी वजह से बच्चा हर फेज में डाइवर्ट रहता है। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं, हम पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये समझ लीजिए कि 2 साल के लिए बच्चा आपने हमें दे दिया है, 2 साल के लिए बच्चे ने मोबाइल फोन्स और इन सब चीज़ों से संन्यास ले लिया है, 2 साल के लिए बच्चा हमारी बनाई हुई सिस्टम को फॉलो करे, तो जो रिजल्ट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो रिजल्ट्स हम यहाँ पे भी प्रोड्यूस करके आपको देंगे। धन्यवाद स्वामी जी। एक आखिरी सवाल रहेगा, थोड़ा समाज का सवाल है। पिछली बार जब एक वीडियो बनाया था आपके यहाँ तो एक भाई का उसमें सवाल था कि लड़कियां तो ऐसा है कि अधिकतर लड़कियां संभल जाती हैं, लेकिन लड़के जब अकेले रहते हैं तो वो घूमना फिरना शुरू कर देते हैं या संगत गलत पकड़ लेते हैं। तो दारूबाजी, गुटखाबाजी या फिर लड़कियों को छेड़ना, गंदी हरकतें करना, तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही ये सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, क्या लड़कों के लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं? दोनों ये स्वामीनारायण गुरुकुल संस्था है, गुरुकुल है और एक ही कैंपस है।
एक कैंपस में आज युवा लड़कों को और लड़कियों को साथ में रखना या तो एक कैंपस में रखना आज के समय के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। छोटी सी भी घटना किसी भी प्रकार से हो गई तो संस्था बंद होने तक ये माहौल बन सकता है। इसलिए हमने सोचा कि पहले चांस किसको दे, तो नज़र में आ के बहनों को दे, लड़कियों को दे, क्योंकि ये लड़की आज छोटी है, वो बड़ी पढ़ के अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बन के अपने पाँव के ऊपर वो खड़ी रहेगी, अपने विचारों से आगे बढ़ेगी, संस्कारों से आगे बढ़ेगी, तो समाज उनका कोई गैर लाभ उठा नहीं सकता है। लेकिन बच्चे लड़के वो बड़ा होके कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, मूव हो सकता है। ये काम आज के हमारी समाज व्यवस्था में बहन नहीं कर सकती है। इसलिए हमने सोचा दूसरी बार शादी करके वो दूसरे घर पे जाएगी तो अपने घर को भी वो उज्जवल करेगी और शादी होने के बाद दूसरे घर को, यानी 2 घर को प्रकाशित करेगी। हमारा ये एम है। डिसिप्लिन भी बहनों में लड़कों से ज़्यादा होती है, आज्ञा पालनता भी बच्चों से ज़्यादा होती है, सिंसियोरिटी भी लड़कियों में ज़्यादा होती है। इसलिए संस्था ने सोचा कि पहले निराधार लड़कियों की ये व्यवस्था दो कि जिसके माता पिता नहीं है उसके माता पिता हमारी संस्था है। उसमें एक बहुत-बहुत addition धन्यवाद। मुझे करना है। एक एडिशन में ये करना चाहूँगा कि जो रेसिडेंशियल व्यवस्था है वो बेटियों के लिए है, जो स्कूल फॉर एक्सीलेंस है उसमें बेटा बेटी हम दोनों को एडमिशन देने वाले हैं, उसमें हमने कोई प्रायोरिटीज़ नहीं दी। लेकिन जो बच्चियां हैं रेसिडेंशियल के लिए जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेसिडेंशियल्स हम बेटियों के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा काफ़ी सारे सवाल थे जिसमें जेईई नीट भी आ गया, 10वीं 12वीं के जो बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि शिक्षा को कहीं न कहीं लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। साथ ही जैसे कि स्वामी जी ने बात की संस्कारों की, तो दुनिया में सबसे महत्व संस्कार रखती है। आप कितना भी पढ़ लोगे लेकिन आपके अंदर अगर संस्कार नहीं है और आप कहीं पर जॉब करने जाते हो तो वहाँ पर आप सामने वाले से ढंग से बात नहीं कर पाओगे। ये आपको संस्कार ही सिखाते हैं। पढ़ाई आपको शिक्षा में बढ़ा सकती है, एक आपको नौकरी बेहतरीन दे सकती है या फिर बिज़नेस में आगे बढ़ा सकती है। लेकिन संस्कार जो है वो आपको समाज में रहने का ढंग और लोगों के साथ मिलना-जुलना और बातचीत करने का ढंग सिखा सकते हैं। तो जिस तरीके से आज का ये विषय था और जिस तरीके से जो जेईई और नीट का विषय कहीं न कहीं जो वलसाड़ ज़िले में वापी के अंदर लेकर आए हैं, सक्सेसफुल रहेगा। और जिस तरीके से अदर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सालों से स्वामी नारायण गुरुकुल स्कूल है यहाँ पर और सलवाओं में जिस तरीके से शिक्षा की बात होती है तो कहीं न कहीं वलसाड़ हो या गुजरात हो, लोग जानते हैं कि स्वामी नारायण गुरुकुल स्कूल में आज तक ना कभी कोई ऐसी घटना घटी है और शायद आगे कभी ऐसी नहीं घटेगी। तो कहीं न कहीं सर्वप्रथम देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और परिवार को एकजुट रखने के लिए जो संस्कारों की बात होती है, वो शिक्षा के साथ-साथ मिलने चाहिए, जो शायद स्वामी नारायण गुरुकुल स्कूल दे रहा है और देता रहेगा। देश-विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालसन न्यूज़।